अपने दरमियान पाकर। Amen. आमीन। And I hope you are glad to be here. और हम समझते हैं कि इसी तरह आप लोग भी बहुत खुश हैं यहाँ आकर। Amen. आमीन। All right, before I share the message, I want to introduce some people to you. इससे पहले कि मैं कलाम का हिस्सा शेयर करूं, मैं कुछ लोगों को आपसे मुतारिफ कराना चाहता हूं। And this is Pastor John. पास्टर जॉन है ये। Pastor John is one of our pastors here. He is one of your pastors. पास्टर जॉन हमारे यहाँ पर एक पास्टर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ये आप लोगों के लिए भी पास्टर की खिदमत अंजाम देंगे। If I'm not here, जब मैं यहाँ नहीं here. हूँ, तो ये यहाँ पर मौजूद है। If I'm not here to preach, he's here to preach also. जब मैं यहाँ इबादत करवाने के लिए मौजूद नहीं हूँ, तो ये यहाँ पर मौजूद है इबादत करवाने के लिए। If you need anything and I'm not here, he's here. You talk to him. जब आप लोगों को किसी चीज की जरूरत है और मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ, तो यहाँ पर मौजूद है। Amen. आमीन। Pastor John is from the UK. पास्टर जॉन बर्तानिया से ताल्लुक रखते हैं। Amen. आमीन। And also too, I want to introduce Brother Christian. He's from Nigeria. मैं ब्रदर क्रिश्चियन को भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ये नाइजीरिया से ताल्लुक रखते हैं। Amen. आमीन। If I'm not here and you need anything with sound or anything, you talk to him. और He'll जब be here. मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ और आपको साउंड या चर्च के मुतालिक कोई भी चीज चाहिए, तो आप भाई से राब्ता कर सकते हैं। Amen. आमीन। And also our dear sister Faith, who is going to be helping us. She's from Nigeria. और ये एक हमारी बहन है जो यहाँ पर खिदमत का काम सर अंजाम देती हैं, ये भी नाइजीरिया से ताल्लुक रखती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Of course, you know our dear sister Sonia. और हमारे मेहमान को शायद आप सब लोग जानते हो, जिनका नाम सोनिया है। Even she's so excited to, for us to, at least we are all one together. आज ये सब को एक साथ देकर बहुत खुशी महसूस कर रही हैं। Amen. आमीन। Then our dear sister also, Sister Milan, she's from the Philippines, but she's half Malaysian. हमारे दरमियान एक गेस्ट है जो फिलीपीन से ताल्लुक रखती थी, लेकिन शायद अब मलेशियन हो चुकी हैं। The husband is from Malaysia. ओह, ये मलेशिया से ताल्लुक रखती हैं। Amen. आमीन। And now I'm so glad that you are here. मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। Amen. आमीन। From my heart, and I want to bless you, and I want to say thank you for being one of us, coming here, and also, letting us be part of your life. मैं पूरे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब ने इस चर्च को चुना और यहाँ आकर खिदमत का काम सरअंजाम देने के लिए हमें मौका बख्शा, और हम आप सबको अपना हिस्सा जानकर बहुत खुशी महसूस करते हैं। And I pray that you're going to tell others. और मैं दुआ करूंगा कि आप जाकर और बहुत सारे लोगों को ये बात बताएं। You're going to tell other Pakistanis that something is happening here. और आप जाकर सब पाकिस्तानियों को बताएंगे कि यहाँ कुछ हो रहा है। Amen. आमीन। Tell them that the Lord has provided a place for them to worship Jesus. आप जाकर उन सबको ये बताएं कि खुदावन ने एक जगह मुहैया की है जहाँ वो सब आकर भी खुदावन की तारीफ कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And I pray next Sunday you're going to bring somebody. और मैं दुआ करूंगा कि अगले संडे आप किसी को लेकर आए। Amen. आमीन। Because together we build the kingdom of God. और हम सब मिलकर खुदावन की बादशाही को काम करते हैं। Praise God. खुदावन की तारीफ हो। Amen. आमीन। All right, let's pray together. आए हम मिलकर दुआ करते हैं। Father, in the name of Jesus, we thank you this afternoon. We say, oh God, that you are God alone. You are the God of the Pakistanis. You are the God of Malaysia. You are the God of the whole world. All power belongs to you. Thank you because you are on the throne. And because you are on the throne, every knee bows. And every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. We thank you. Holy Spirit of God, speak to our hearts. Minister to us. Help us, Holy Ghost. Without you, we can do nothing. Bless our hearts today. Thank you for your people. And thank you for these children here. Thank you for bringing us together as one body. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen. Amen. I want you to put your hands together for Brother Lucas and his wife. They are great people. Amen.
good people. Praise the Lord. All right, turn with me to the book of John. John chapter number 14. मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 14वां बाब। John chapter 14. यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 14वां बाब। Hallelujah. You want to read from just verse 1. हम उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। Hallelujah. It says, let not your heart be troubled. यहाँ कलाम फरमाता है कि अपने दिल को घबराहट से बचाइए। It does not matter what you see, what you hear, what you feel. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कुछ महसूस करते हैं, कुछ देखते हैं। Let not your heart be troubled. आप अपने दिल को घबराने ना दीजिए। Regardless of what newspaper says. अगर अखबार कुछ भी कहे, It doesn't matter what the TVs are saying. इसका कोई मतलब नहीं कि अगर टीवी पे कुछ खबरें चल रही हो। It doesn't matter what phone calls you receive from home. इसका कोई मतलब नहीं कि अगर आपको किसी तरह की भी फोन कॉल्स हो रही हो, चाहे It घर says, से आ रही हो। let not your heart be troubled. कलाम सिर्फ कहता है कि अपने दिल को घबराने ना दीजिए। He said, you believe in God. ये कहता है कि अगर तुम खुदा पर ईमान रखते हो Believe also in Jesus. और यीशु पर भी ईमान रखो। It doesn't matter what we're going through today. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं हम किसी तरह के हालात में से भी गुजर रहे हो। The Lord says, let not your heart be troubled. खुदावंद फरमाता है कि अपने दिल को घबराने ना दीजिए। Maybe you are yet to receive your salary. अगर आपको अभी तक तनख्वाह नहीं मिली, Maybe you don't have a job. अगर आपके पास नौकरी नहीं है, Maybe your job, your salary is too small. अगर आपकी तनख्वाह बहुत छोटी है, The Lord God says, let not your heart be troubled. खुदावंद आसमानी बाप फरमाता है कि अपने दिल को घबराने मत दीजिए। Maybe you don't have enough food at home. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास खाने के लिए खाना ना हो घर पर। Maybe you are sick in your body. अगर आप अपने जिस्म के अंदर बीमारी महसूस करते हैं, He says, let not your heart be troubled. कलाम फरमाता है कि अपने दिल को घबराने ना दीजिए। Only a great God could say a thing like that. सिर्फ हमारा खालिक मालिक आसमानी बाप ये कह सकता है। Before God says, let not your heart be troubled, इससे पहले कि खुदावंद कहे कि अपने दिल को घबराने ना दीजिए, it means He is up to something. इसका मतलब है कि वो कुछ करने वाला है। God cannot tell you, let not your heart be troubled without meaning it. खुदावंद हरगिज़ ऐसा नहीं कह सकता कि अपने दिल को घबराने ना दे और उसका कुछ मतलब ना हो। He says, let not your heart be troubled. वो कहता है कि अपने दिल को घबराने ना दे। Meaning here is up to something. इसका मतलब है कि वो कुछ करने वाला है। Can you see that? If God is saying, be peaceful, अगर खुदावंद कहता है कि इत्मीनान रखिए, be at peace, इत्मीनान रखिए, it means He's watching your back. इसका मतलब है कि वो आपकी पुष्ट पनाही कर रहा It है। means He's watching after you. इसका मतलब है कि वो उसका ध्यान आप पर लगा हुआ है। It means His hands are over you. इसका मतलब है कि उसका दाहिना हाथ आपके ऊपर है। It means His protections are all around you. इसका मतलब है कि उसने आपको चारों तरफ से महफूज घेर It रखा है। means He's ready to provide. इसका मतलब है कि वो हाजिर है मुहैया करने के लिए। His job may not be good enough, अगर आपका काम बहुत अच्छा नहीं है, but He is up to something. इसका मतलब है कि वो कुछ करना चाह रहा है। You may not feel blessed. अगर आप बरकत नहीं महसूस कर रहे, You may not look blessed. अगर आप बरकत महसूस नहीं करते, You may not look rich. अगर आप अपने आप को मालदार नहीं But समझते, God is up to something. लेकिन खुदावंद कुछ कर रहा He है। says, let not your heart be वो troubled. कहता है कि अपने दिल को घबराने ना दे। You may not have money to send your children to school. अगर आपके पास पैसे नहीं है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, You may not have the money to buy their books. अगर आपके पास पैसे नहीं है कि आप उनकी किताबें खरीद सके, But He says, let not your heart be troubled. लेकिन कलाम फरमाता है कि तेरा दिल ना घबराए। The world will not tell you, let not your heart be troubled. दुनिया आपको ये नहीं कह सकती कि आपका दिल ना घबराए। The government cannot tell you, let not your heart be troubled. गवर्नमेंट इस बात का इत्मीनान नहीं दे सकती कि आपका दिल ना घबराए। The government may promise you peace. गवर्नमेंट इस बात का इत्मीनान आपको दे सकती है, वादा कर सकती है कि आपको peace देगी। Government doesn't have peace. लेकिन हुकूमत के पास खुद इत्मीनान नहीं है। Government will tell you, we give you peace.
गवर्नमेंट कह सकती है कि हम आपको इत्मीनान देंगे, but they themselves don't have peace. लेकिन उनके पास अंदरूनी तौर पर खुद इत्मीनान How नहीं है। can they give you peace when they don't have peace वो themselves? इस तरह वो आपको कैसे इत्मीनान दे सकते हैं जब उनके पास खुद इत्मीनान नहीं है। It says, let not your heart be troubled. कलाम कहता है कि अपने दिल को घबराने ना दे। You may not have food this afternoon. अगर आपके पास आज के दिन दोपहर को But खाना it नहीं है, says, let not your heart be troubled. तो भी कलाम फरमाता है कि अपने दिल को घबराने ना दे। What does it mean when God says, let not your heart be troubled? इसका क्या मतलब है कि जब खुदावंद कहता है कि अपने दिल को घबराने ना It दे? means He's telling you, don't be afraid. इसका मतलब है वो कहता है कि डरो मत। It means don't be afraid. इसका मतलब है डरो मत। It means don't be afraid. इसका मतलब है डरो मत। You may not have the documents. अगर आपके पास कागजात नहीं है, Don't be afraid. आप डरे नहीं। God is up to something. खुदावंद कुछ करने वाला है। God is working out something. खुदावंद किसी पर काम कर रहा है। God is preparing something. खुदावंद कुछ तैयार कर रहा है। The blessing of the Lord is working for you. खुदावंद यीशु मसीह की बरकत आपके The लिए काम कर रहा peace है। of God got to fill your heart. खुदावंद का इत्मीनान आपके दिल को भरने वाला है। Tell somebody, don't be troubled. आप अपने पड़ोसी से कहिए कि डरिए मत। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When your eyes are on Jesus, जब आपकी आंखें खुदावंद यीशु मसीह पर लगी हुई हो, that is the only time to experience peace. वही एक वक्त है जब आप इत्मीनान का But when your मंजर eyes देख are सकते हैं। on the government, लेकिन जब आपकी आंखें गवर्नमेंट पर लगी हुई हैं, they will disappoint you. वो फिर आपको डिसअपॉइंट कर देंगे। Hallelujah. हालेलुया। We are serving a God that can disappoint. हम एक ऐसे खुदा की ताज़ीम करते हैं जो हमारे दिल को रंजीदा ना होने देगा। Your government may disappoint you. आपकी गवर्नमेंट आपको रंजीदा कर सकती है, Even the brother sitting next to you can disappoint you. लेकिन जो भाई आपके करीब बैठा है, जो बहन आपके बगल में बैठी है, This वो आपको is- रंजीदा कर The सकती है। sister can disappoint you. The sister can disappoint you. बहन आपको रंजीदा नहीं कर सकती, But God cannot disappoint. लेकिन खुदावंद आपको रंजीदा नहीं कर सकता। God cannot disappoint. खुदावंद आपको कभी रंजीदा नहीं कर If सकता। your hope is in man, लेकिन अगर आपका ईमान एक इंसान पर है, if your hope is in somebody, अगर आपकी उम्मीद किसी इंसान पर है, that hope will disappoint you. वो उम्मीद आपको रंजीदा कर सकती है। Hallelujah. हालेलुया। Are you hearing this? आप ये सुन रहे हैं? Go to the book of Psalm. ज़बूर की किताब की तरफ रुख करते हैं। I want to show you something मैं there. आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The book of Psalm, Psalm 60. ज़बूर नंबर 60, ज़बूर नंबर 60 निकालिए। I want you to take a look at verse number 11. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आयत नंबर 11 को देखिए। Are you there? क्या आप पहुँच गए हैं? I want to read from verse 11. मैं 11वीं आयत से पढ़ना चाहता Or हूँ। you would better read just verse 11 to 12. मैं 11वीं आयत से 12वीं आयत आप सब लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। मुखालिफ के मुकाबला में हमारी कुमक कर, क्योंकि इंसानी मदद अब्स है। खुदा की मदद से हम बहादुरी करेंगे, क्योंकि वही हमारे मुखालिफों को पामाल करेगा। आमीन, Hallelujah. आमीन। Can you see that? क्या आप ये देख सकते हैं? He says, give us help in our troubles. क्योंकि खुदावंद हमारे साथ हमारी मुसीबतों में है। God, give me help from troubles. खुदावंद मुझे हमारी मुसीबत से छुड़ा। Lord, give me help from troubles. खुदावंद मुसीबत में मेरी मदद फरमा। He says, for help from men is useless. क्योंकि इंसान की तरफ से मदद जो है Give वो me अब्स है। help, oh God. खुदावंद मेरी मदद को आ। Lord, give me help. खुदावंद मेरी मदद को आ। Can you see that? क्या आप देख He सकते said, हैं? give us help from our troubles. खुदावंद हमारी मदद कर सकता है Lord, मुसीबत give से us छुड़ाने के help लिए। from our troubles. खुदावंद हमारी मदद कर सकता है He मुसीबत से says, for छुड़ाने के लिए। then is the help of man. खुदावंद हमें छुड़ा सकता है मुसीबत से। इंसान की मेहनत अब से हो सकती है। Hallelujah. हालेलुया। He says, through God we shall do valiantly. खुदावंद की मर्जी से हम सेहत और तंदुरुस्ती और बरकत पाते हैं। Ladies and gentlemen, ख़वातीन और हज़रात, if God cannot help you, अगर खुदावंद आपकी मदद नहीं कर सकता, then you are helpless. तब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। Did you hear that? क्या आप सुन रहे हैं? If God can help you, अगर खुदावंद आपकी मदद कर सकता है, then you are helpless. अगर खुदावंद आपकी मदद नहीं करे तो आप If God cannot rescue you, अगर खुदावंद आपको नहीं छुड़ा सकता, then forget it. और फिर आप इसको भूल जाइए। If God cannot fight for you, अगर खुदावंद आपके लिए जंग नहीं कर सकता, forget the fight.
फिर आप जंग को भूल जाइए। If God cannot protect you, अगर खुदावंद आपको महफूज नहीं रख सकता, then forget it. फिर इसको भूल जाइए। But God can protect us. लेकिन खुदावंद हमें बचा सकता है। God can fight our battles. खुदावंद हमारी जंग लड़ सकता है। God can heal our sicknesses. खुदावंद हमें बीमारी से छुड़ा सकता है। God can pay our rents. खुदावंद हमारे God can provide for us. खुदावंद हमारे लिए मुहैया कर Is सकता है। somebody hearing this afternoon? क्या आप कोई सुन रहा है? God is going to be always there for us. खुदावंद हमेशा हमारे लिए मौजूद God है। will give us peace. खुदावंद हमें इत्मीनान देगा। God will give us joy. खुदावंद हमें खुशी देगा। God will meet our needs. खुदावंद हमारी जरूरतें पूरी करेगा। Hallelujah. हालेलुया। If God cannot give you visa, forget it. अगर खुदावंद आपको वीजा नहीं दे सकता तो आप इसे भूल जाए। Did you hear that? क्या आपने सुना ये? If God cannot give you visa, forget it. अगर खुदावंद आपको वीजा नहीं दे सकता तो फिर आप इसको भूल Is जाए। somebody listening tonight? क्या कोई सुन रहा है इस बात को? Put your hope in Jesus. अपने इरादे को खुदावंद पर छोड़िए। Put your hope in Jesus. खुदावंद पर भरोसा कीजिए। If your hope is in your boss, if your hope is in your boss, अगर आपका भरोसा अपने बॉस पर है, if your hope is in your boss, अगर आपका भरोसा अपने बॉस पर है, forget it. फिर इसे भूल जाइए। Your boss can disappoint you. आपका बॉस आपको रंजीदा कर सकता है। Your boss can disappoint you. आपका बॉस आपको रंजीदा कर सकता है। Your neighbor can disappoint you. आपका पड़ोसी आपको रंजीदा कर सकता है। But there is a God that cannot disappoint. लेकिन खुदा कभी आपको I said there is a God that cannot disappoint. सिर्फ खुदावंद आपको कभी रंजीदा नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। That is why. इसीलिए That is why Psalm 61. इसीलिए ज़बूर 61, I want you to read from verse number 1. ज़बूर 61 उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। Psalm 61 from verse 1. ज़बूर 61 उसकी पहली आयत 1 से, to 4. पहली आयत से चौथी आयत तक। If you are there, say amen. Amen. If you can't find it, say hallelujah. क्या आप सब यहाँ पहुंच चुके हैं ज़बूर नंबर 61 पर? ऐ खुदा मेरी फरियाद सुन, मेरी दुआ पर तवज्जो कर। मैं अपनी अफसुर्दा दिली में ज़मीन की इंतहा से तुझे पुकारूंगा। तू मुझे उस चट्टान पर ले चल जो मुझसे ऊंची है, क्योंकि तू मेरी पनाह रहा है और दुश्मन से बचने के लिए ऊंचा बुर्ज। मैं हमेशा तेरे खैमा में रहूंगा, मैं तेरे परों के साये में पनाह लूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। Amen. Did you see that? क्या आपने देखा ये? Verse 3. तीसरी आयत को गौर से देखिए। It says, for you, you've been my shelter. ये आपके लिए है कि खुदावंद हमारा चौपान है। God has been my covering. खुदावंद मुझे ढांप लेता है। When sickness wanted to destroy my life, जब बीमारी मुझे तबाह करने के लिए आती है, God protected me. खुदावंद मुझे महफूज रखता है। Is somebody hearing this? क्या कोई सुन रहा है? When hunger wanted to destroy my life, जब भूख मुझे सताने और तबाह करने आती है, God provided food for me. खुदावंद मुझे खाना मुहैया करता है। Hallelujah. हालेलुया। When the wicked ones wanted to put me in jail, जब शैतान लोग मुझे जेल में डालना चाहते हैं, God blindfolded their eyes from खुदावंद seeing. उन्हें नाबीना कर देता है और मुझे देख नहीं And सकते। somebody say amen. कोई आमीन कहे। It says, for you, you've been my protector, हम कहते हैं कि खुदावंद तू ही हमारा मुहाफिज है, a strong tower from my enemies. तू ही हमें हमारे दुश्मन से छुड़ाने वाला है। He said, I will stay in your tabernacle. मैं तेरी बारगाहों में रहना पसंद करूंगा। There is no better place to be other than in the house of God. इससे बेहतरीन और कोई जगह नहीं है खुदा के घर से ज्यादा। Amen. आमीन। There is no better place to be other than the house of God. खुदा के घर में रहने से ज्यादा बेहतर और कोई जगह नहीं इस दुनिया में। Amen. आमीन। He says, when I cried unto God, ये कलाम फरमाता है कि जब मैं खुदावंद की तरफ लपका और रोया, God heard me. खुदावंद ने मेरी आवाज को सुना। Amen. आमीन। How many of you here can testify that the Lord has been so good to you? क्या आप में से कौन लोग इस चीज को बयान कर सकते हैं कि खुदावंद आपके साथ खुश रहा है? अपने हाथ को बढ़ाइए। Okay. How many of you here can say God has not been good to you? आप में से कितने लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो कह सकते हैं कि खुदावंद आपके साथ अच्छा नहीं रहा? Can I see your hand? क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूँ? So God is good to you. तो इसका मतलब है खुदावंद आपके साथ बहुत अच्छा है। आमीन। Come on now. Come on now. Come on now.
ये कहते हैं कि मुझे मदद फराहम कर जब मैं मुसीबत में हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You see, as a foreigner, आप देखिए, एक गैर मुल्की होने के हैसियत से I know what you go through. मैं जानता हूँ कि आप किस मुसीबत से दो चार हैं। I understand. मैं समझता हूँ इस बात को। Are you hearing this? क्या आप ये सुन रहे हैं? The Malaysians out there may not understand ये जो मलेशियन लोग हैं शायद ये ना जानते हो, because they don't know what it means to be a foreigner. क्योंकि ये नहीं जानते कि एक गैर मुल्की होने का मतलब क्या है। Some of them may not even know what it means to be hungry. उनमें से बहुत से शायद ये भी ना जानते हो कि भूखे रहने का मतलब क्या But है, I know what it means to be hungry. लेकिन मैं जानता हूँ कि भूखे रहने का Come मतलब on क्या now. है। I know what it means to stay without money in your pocket. मैं जानता हूँ कि जब आपकी जेब में पैसे ना हो तो आपकी क्या सूरत हाल होती है। I know what it means to have the bills and no money to pay. मैं इस सूरत हाल से वाकिफ हूँ कि जब आपके बिल आपके सर पर हो और आपके पास पैसे ना हो अदा करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। But we serve a God that can change things around. लेकिन हम ऐसे खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं जो सारे हालात को तब्दील कर सकते It's हैं। not accident that you are here tonight. ये एक एक्सीडेंट नहीं है कि आज आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। It's not by mistake that you are here this evening. ये कोई गलती नहीं है कि आज शाम आप सब लोग यहाँ पर मौजूद You हैं। are here this evening because God wants you to be here. आप सब लोग यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि खुदावंद आप सब लोगों को यहाँ You लाया। are here today because God wants you to be here. आप इस जगह इसलिए मौजूद हैं क्योंकि खुदावंद की मर्जी थी कि आज इस वक्त आप सब यहाँ मौजूद हैं। Because He knows that you are here. क्योंकि वो जानता है कि आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। He's committed to helping you. वो इस जगह मौजूद इसलिए है कि आप सबको खुश करे। Are you listening now? क्या आप सुन रहे हैं सब? He has paid your bills last month. उसने पिछले महीने आपके सारे बिल अदा किए, He will pay your bills this month. वो आज भी आपके सारे बिल अदा Come on करेगा। now. If God could pay your bills last month, अगर खुदावंद पिछले गुजरे माह आपके बिल पे कर सकता है, He's capable of paying your bills this month. वो इस काबिल है कि वो इस महीने भी आपके बिल पे If करे। He provided food for you yesterday, अगर उसने गुजरे कल आपके लिए खाना मुहैया He किया, can give you food today वो also. आज भी आपको खाना दे सकता है। If He can give you food today, वो अगर आज आपको खाना दे He सकता can है, give you food tomorrow. वो कल भी आपको खाना दे Is सकता somebody है। listening now? कोई सुन रहा है क्या? If He, are you hearing this? क्या आप सुन रहे If He हैं? can give you food tomorrow, if He can give you food tomorrow, अगर वो कल आपको खाना दे सकता He है, can give you food a day after. वो आपको परसों भी खाना दे If सकता He है। can give you food a day after, अगर वो परसों आपको खाना He दे can सकता give है, you food next week. वो आपको अगले हफ्ते भी खाना दे सकता Tell है। somebody relax. आप सब रिलैक्स हो जाएं। Tell somebody relax. आप अपने पड़ोसी को कहेंगे रिलैक्स हो Come जाएं। on, tell your neighbor relax. अपने पड़ोसी से कहें कि इत्मीनान पाए। God is in control. वो खुदावंद ने इख्तियार हासिल कर लिया है। Come on, are you hearing this? क्या आप सुन रहे हैं ये? He said, let not your heart be troubled. कलाम कहता है कि तेरा दिल ना घबराए। Let not your heart be troubled. कलाम कहता है कि तेरा दिल ना घबराए। In other words, don't be afraid. वो दूसरे अल्फाजों में कि खौफ ना खा, Don't be afraid. डरो मत, Don't be afraid. खौफ ना खा। God is in control. खुदावंद ने सारा इख्तियार हासिल कर लिया है। Go to the book of Romans, रोमियो की किताब को खोलिए, chapter number 8. 8वां बाब। Hallelujah. हालेलुया। Are you glad today? क्या आप सब लोग खुश हैं? Are you excited today? क्या आप लोग एक्साइटेड हैं आज? Oh, Romans chapter 8, verse 31. रोमियो 8वां बाब और Verse 31. 31वां। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? आमीन। And somebody say amen. आमीन। If God be for us, अगर खुदावंद हमारी तरफ है, if God be for us, अगर खुदावंद हमारी तरफ है, if God be for us, अगर खुदावंद हमारी तरफ है, who can be against us? तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? Hallelujah. हालेलुया। It doesn't matter whether it is called dengue fever. If God be for us, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर आपको डेंगू फीवर हो गया है, लेकिन खुदावंद हमेशा आपके साथ है। it doesn't matter what they call it. They say malaria. If God be for us, आप मत घबराए अगर कोई कहे कि आपको मलेरिया हो गया है, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। hallelujah. हालेलुया। If God be for you, अगर खुदावंद आपके साथ है, who can be against us? तो आपके मुखालिफ कौन हो सकता है? Who can be against you? तो आपके मुखालिफ कौन हो सकता If है? God be for me, अगर खुदावंद मेरे लिए है, if God be for you, अगर खुदावंद आपके लिए है, who can be against us?
तो फिर आपके मुखालिफ और मेरे मुखालिफ कौन हो सकता है? Hallelujah. हालेलुया। Thank God, God is for us. खुदावंद का शुक्रिया अदा करें कि खुदावंद हमारे लिए I है। said, thank God, God is for us. मैं कहता हूं कि खुदावंद का शुक्रिया अदा करें कि खुदावंद हमारे लिए है। Blessed be God, He is on our side. खुदावंद को मुबारक कहें कि वो हमारी तरफ है। God is on our side. खुदावंद हमारी तरफ है। God is on our side. खुदावंद हमारी तरफ है। I may not have money now, but God is still on my side. वो मेरा ईमान है, अगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है लेकिन खुदावंद मेरी You तरफ may है। not have a job right now, but God is on your side. अगर इस वक्त आपके पास नौकरी नहीं है लेकिन खुदावंद आपकी तरफ है। The bills may be coming, but God is on our side. अगर बिल आ रहे हैं लेकिन खुदावंद हमारी तरफ है। There may be persecutions, but God is still on our side. अगर हम खुदावंद के नाम पर सताए जा रहे हैं लेकिन खुदावंद हमारी तरफ है। There may be oppositions, but God is still on our side. अगर हमारी मुखालफत बहुत है लेकिन खुदावंद हमारी तरफ है। Hallelujah. हालेलुया। You may be sick, but God is still on your side. अगर आप बीमार हैं लेकिन खुदावंद आपकी तरफ है। One of the evidence क्या इसकी गवाही है to show that God is on our side कि खुदावंद हमारी तरफ है is giving us this place. कि उसने हमें ये जगह दी है। Oh, come on now. Come on now. Come on now. Hallelujah. Hallelujah. I said this place is an evidence that God is with us. ये जगह एक बहुत बड़ी गवाही है कि खुदावंद हमारी तरफ है। Tell somebody God is with me. आप किसी को कहिए कि खुदावंद मेरे Come on, साथ tell somebody है। God is किसी को with कहिए me. कि खुदावंद मेरे साथ है। God is with me. खुदावंद मेरे साथ है And not against me. और मेरे खिलाफ नहीं। God is with me. खुदावंद मेरे साथ है। God is with us. खुदावंद हमारे He's साथ है। not against वो us. हमारे खिलाफ नहीं। Hallelujah. हालेलुया। God is with us. खुदावंद हमारे साथ है। We may not see Him. अगर हम उसको देखते नहीं है, Sometimes we may not see Him. कई वक्त हम उसे देख नहीं पाते। Sometimes we think He's far away. हम कई मर्तबा सोचते हैं कि वो हमसे दूर है। Sometimes we think He's not working. हो कई मर्तबा हम ये ख्याल लाते हैं कि वो काम नहीं कर रहा। Sometimes we think He has forgotten us. कई मर्तबा हमारे जहन में ख्याल आता है कि वो हमें But भूल गया है। God is working. लेकिन खुदावंद काम I कर said रहा है। God is working. खुदावंद काम कर रहा है। God is working. खुदावंद काम कर रहा है। God is working. खुदावंद काम कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। One of the ways, another ways to know that God is working और ऐसे कौन से वसाइल हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि खुदावंद काम is कर रहा है? that you are seated here right now. सबसे बड़ी शहादत कि आप इस वक्त इस जगह बैठे हुए हैं। If God is not on your side, अगर खुदावंद आपकी तरफ ना होता you wouldn't be here today. तो आप यहाँ मौजूद ना होते। And somebody say amen. और कोई आमीन बोले। Hallelujah. हालेलुया। It shows that God is with us. ये इस बात की शहादत है कि खुदावंद हमारी तरफ है। Jesus says, don't be afraid. यीशु कहता है कि तेरा दिल ना घबराए। Fear is something that the devil uses to destroy Christians. खौफ एक ऐसी बला है जिसे इब्लीस इस्तेमाल करता है मसीहों को तबाह करने के लिए। Fear of tomorrow, कल का खौफ, fear of our health, हमारी सेहत का खौफ, fear that we don't have money, इस बात का खौफ कि हमारे पास पैसा नहीं है, fear of immigration, इमिग्रेशन का खौफ, fear of the police, पुलिस का खौफ, fear that our families back in our home countries may not have food, इस बात का खौफ कि हमारे लोग जो पिछले मुल्कों में हैं उनके पास खाना नहीं है, fear that we don't have money to send to them. इस बात का खौफ कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उन्हें भेज दें। All these are the works of the devil. ये सब शैतान के काम हैं। Fear खौफ is what the devil uses to destroy Christians. खौफ एक ऐसा हथियार है जो इब्लीस इस्तेमाल करता है मसीहों को तबाह करने के लिए। But today, लेकिन आज fear got to go. खौफ को यहाँ से जाना होगा। Fear must go. खौफ को यहाँ से जाना होगा। Jesus says, let not your heart be troubled. क्योंकि यीशु ने कहा है कि तेरा दिल ना घबराए। Let not your heart be troubled. यीशु ने कहा है कि तेरा दिल ना घबराए। Let not your heart be troubled. यीशु ने कहा है कि तेरा दिल ना It doesn't घबराए। matter what you feel. It doesn't matter what you feel. इसका हरगिज मतलब नहीं कि आपके दिल में कुछ भी बात चल रही It है। doesn't matter what you hear. इसका कोई हरगिज मतलब नहीं कि आप कुछ भी सुन रहे It हो। doesn't matter what you see. इसका हरगिज मतलब नहीं कि कुछ भी आप It देख doesn't रहे हो। matter what you are told. इसका हरगिज मतलब नहीं कि कुछ भी आपको बताया It गया हो। doesn't matter what you read from the newspapers. अगर आपने कुछ गलत खबरें पढ़ी है उसका Or कोई what मतलब the नहीं। TVs are saying. अगर टीवी पे आप गलत खबरें सुन रहे The हैं, Bible says, लेकिन कलाम फरमाता है according to Jesus, वो यीशु मसीह की मार्फत fear not. कि डरो मत, Fear not. डरो मत, Let not
घबराए। He provided yesterday. उसने हमें कल भी दिया था, He can still provide today. वो आज भी हमें दे सकता है। And if He can provide today, लेकिन अगर वो आज दे He सकता will है, provide tomorrow. वो कल भी देगा। Let not your heart be troubled. तुम्हारा दिल ना घबराए। And somebody shout amen. 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 आमीन। Do you believe that? क्या आप इस पर भरोसा करते Do हैं? you believe that? क्या आप इस पर ईमान लाते Do हैं? you believe that God is watching over you? क्या इस बात पर ईमान लाते हैं कि खुदावंद देख रहा है? Do you believe that God is protecting you? क्या आप इस बात पर ईमान लाते हैं कि खुदावंद Do आपकी you महफूज believe कर रहा है? that God can still heal you? क्या आप इस बात पर ईमान लाते हैं कि Do खुदावंद you को शिफा दे believe सकता है? that God can still provide food for you? क्या आप इस बात पर ईमान लाते हैं कि खुदावंद अभी भी आपको खाना दे Do you सकता है? believe that God can still give you another job? क्या आप इस बात पर ईमान लाते हैं कि खुदावंद आपको एक नई नौकरी दे सकता है? Then fear not. तो इसलिए घबराइए मत, Fear not. डरिए मत। Tell somebody, fear not. अपने बराबर किसी को कहें कि डरिए मत, Come on, tell somebody, fear अपने not. पड़ोसी को कहें कि डरिए मत। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God is on our side. खुदावंद हमारी तरफ है। Amen. आमीन। He says, let not your heart be troubled. इसीलिए वो कहता है कि तेरा दिल ना घबराए। You believe in God. अगर आप खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, Believe also in me. ओ खुदावंद पर भी भरोसा रखें। You believe in God. अगर तू खुदावंद पर ईमान रखता है, Believe also in me. ओ मुझ पर भी भरोसा रख। And that is what tonight is all about. और यही आज के दिन सारी बात है। Believe the Lord. खुदावंद पर भरोसा रखें, Believe the Lord. खुदावंद पर भरोसा रखें, Believe the Lord. खुदावंद पर भरोसा रखें। Amen. आमीन। Believe the Lord. Not only in church. सिर्फ कलीसिया में, चर्च में रहते हुए खुदा पर भरोसा At home, believe the Lord. रखें। घर पर भी खुदावंद पर भरोसा रखें। At work, believe the Lord. काम पर भी खुदावंद पर भरोसा रखें। Inside your car, believe the Lord. जब आप गाड़ी चला रहे हैं तब भी खुदावंद पर भरोसा You're रखें। riding your motorbike, believe the Lord. जब आप मोटर बाइक पर सफर कर रहे हैं, खुदावंद At पर भरोसा work, रखें। believe the Lord. खुदावंद का भरोसा रखें जब आप काम पर हैं। Inside the bus, believe the Lord. जब आप बस में हैं तो खुदावंद पर भरोसा रखें। While you are eating, believe the Lord. जब आप खाना खा रहे हैं तब भी खुदावंद पर भरोसा रखें। Inside the church, believe the Lord. जब आप खुदा के घर में हैं, खुदावंद पर भरोसा रखें। On the street, believe the Lord. जब आप रोड पर हैं, खुदावंद पर भरोसा रखें। Hallelujah. हालेलुया। Believe the Lord. खुदावंद पर ईमान रखें। Amen. आमीन। When you believe Him, जब आप उस पर भरोसा रखते you हैं, will see Him working on your behalf. फिर आप उसको अपने लिए काम करता हुआ देखेंगे। Amen. आमीन। Are you excited today? क्या आप जुस्तजू कर रहे हैं आज? Do you believe that God is able? क्या आप महसूस करते हैं कि खुदावंद काबिलियत रखता है? Do you believe that He is able? क्या आप जानते हैं कि वो कर सकता है? Do you believe that He is able to do what He says He will do? क्या आप ईमान रखते हैं कि जो कुछ खुदावंद कहता है वो कर सकता है? Hallelujah. हालेलुया। Do you believe? क्या आप ईमान रखते हैं? Let's stand on our feet. आइए हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Father,